Hello, good morning, students. So let's continue with chapter number 4. Last class में we had discussed a lot about the first three methods of contraceptive devices. इसमें एक method रह गया, that is the method of surgical method. Okay. Now talking about this surgical method, इसमें we have two methods. One is meant for males, one is meant for females. ये आपने already class 10th में study किया है. तो सर्जिकल मेथड में जो फर्स्ट मेथड होता है दैट इज कॉल्ड वेसेक्टमी. आपने अभी जब चैप्टर 2 आपको कराया था स्कूल में तो देयर आई टोल्ड यू कि जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन कैरिंग द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड. सो ये जो वेसेक्टमी है इट्स अ वेरी माइनर सर्जिकल ऑपरेशन. Minor surgical operation means कि morning time में the patient will be admitted in the hospital and by evening time the patient can go back to the home. So इसमें what they are doing is they are cutting up these uh, vast difference tube and they are tying them up. तो जब आप vast difference tube को cut और tie कर दोगे तो obviously the sperms which are being formed in the testis region, those sperms cannot reach the penis, they cannot move outside, and in the absence of sperm there will be no fertilization, no zygote और embryo will be formed. Similarly आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि फीमेल्स के लिए वी हैव अ प्रोसीजर जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स को कट और टाई कर देते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टमी. फेलोपियन ट्यूब्स है ना तो इसीलिए वर्ड आया है ट्यूबेक्टमी. So in this process we are cutting the fallopian tubes and we are tying them. But you will be surprised to know कि जब हम fallopian tube को कट कर रहे हैं टाई कर रहे हैं तो जो ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होता है दैट ओवम कैन नॉट रीच द यूट्रस. ऑब्वियसली अगर ओवम यूट्रस में रीच नहीं कर रहा है तो देर विल बी नो चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. बट ये जो वेसेक्टमी प्रोसीजर है इसका फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. हाँ, ठीक है, उसकी फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल पे कोई इफेक्ट नहीं होता. दैट प्रोसेस will not affect their menstrual cycle or any other thing. The only thing it will prevent is that कि जो egg है वो uterus में reach नहीं कर पाएगा. So surgical method में we are having these two options, that is vasectomy and tubectomy. Now coming back to that portion कि जो भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं स्पेशली ओरल पिल्स हैं एंड अदर थिंग्स हैं दे माइट बी हैविंग स्मॉल इल इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स इन सम पर्सन. ये आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है. जैसे सम लेडीज दे माइट हैव द फीलिंग ऑफ नोजिया. नोजिया मतलब वॉमिटिंग सेंसेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड नोजिया. देन सम ऑफ देम might be start feeling abdominal pain. It might affect their menstrual cycle, and in some of the rarest case it might also cause breast cancer and other things. So that is why the ladies who are choosing for the oral contraceptive method, they must make sure कि they are selecting a good one, because अगर आप if you're not selecting so good one then there are chances that you might be having some of the ill effects. Then we have to discuss about this term medical termination of pregnancy. Now talking about medical termination of pregnancy जिसको कि हम MTP भी कहते हैं. अब ये जो हमारा MTP है इसमें we what we have to discuss is that कि ये जो MTP है एक तो पहले आपको इसकी फुल फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी means induced abortion. Abortion can be natural or it can be induced. So if any person is getting the fetus aborted with the help of doctor, अगर आप जानबूझ के abortion करा रहे हो then that is called MTP or medical termination of pregnancy. Now हर कंट्री में इसके जो रूल्स हैं लॉज हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं. जैसे इंडिया में दो चीज़ें MTP के साथ कनेक्टेड हैं. एक तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स में ही अलाउड है. ठीक है, अगर फर्स्ट 3 मंथ्स होता है जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं वहाँ तक अगर एबॉर्शन करा रहे हैं तो इट्स सेफ. लेकिन 3 मंथ्स के बाद एक्चुअली क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का साइज़ होता है वो कंसिडरेबली काफ़ी लार्ज हो जाता है. उसके बाद अगर एबॉर्शन कराया जा रहा है या MTP कराते हैं सो दैट कैन बी लीथल, दैट कैन बी फेटल फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर. इसीलिए 3 मंथ्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी अलाउ नहीं करती है. कोई भी डॉक्टर अगर लेट्स से कि कोई ऐसा केस है कि जहाँ पे फीटस एबनॉर्मल है और पेरेंट्स को 3 मंथ्स के बाद पता चला है. अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो अभी रिसेंटली शायद एक ऐसा केस हुआ है इंडिया में जिसमें गुजरात साइड के देयर वाज अ कपल हु वाज लिविंग ओवर देयर एंड बिकॉज उनको 3 मंथ्स के बाद ये पता चला कि जो उनका चाइल्ड है उसमें कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है. मीन्स अ चाइल्ड इज हैविंग हेरिडिटरी प्रॉब्लम एंड दे वांटेड टू गेट देयर फीटस अबॉर्ट. लेकिन उस टाइम पे इट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि 3 मंथ्स से ज़्यादा हो गए थे और जो गवर्नमेंट का रूल है वो 3 मंथ्स तक ही अलाउ करता है. तो किसी भी डॉक्टर ने उनके फीटस को अबॉर्ट नहीं किया.
देन दे हैड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट कि ये जो चाइल्ड बॉर्न होगा दिस विल बी अ वेरी अनहेल्दी चाइल्ड, दैट चाइल्ड विल बी हैविंग अ सिवियर हेरिडिटरी डिजीज, सो प्लीज अलाउ। तो आई थिंक उनको 2 वीक्स का एक्सटेंशन मिल गया था। देन दे with the help of that order they can approach some doctor and get the fetus aborted। तो rules हर country के अलग होते हैं। तो इंडिया में it is only allowed for the first 3 months, ठीक है। then we have to discuss देन आई मस्ट टेल यू कि ये जो MTP है इंडिया में इसके मिसयूज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सो दैट इज़ वाई क्या होता है कि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई की हुई हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अमीनोसेंटोसिस कि इंडिया में प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है, मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले वेदर द चाइल्ड इज़ मेल और फीमेल ये पता लगाना बैन है। अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा करता है तो उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। तो ये डॉक्टर्स को बहुत ध्यान रखना है दैट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी इलीगल प्रैक्टिस, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि फीटस फीमेल है तो इंडिया में फीमेल फिटिसाइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सो दे माइट ट्राई टू अबॉर्ट द फीमेल फीटस। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 इसमें कंडीशंस लगाई हुई हैं। MTP इंडिया में अलाउड है, 1971 से ही शायद अलाउड है, बट इसमें 2 कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। फर्स्ट इज़ दैट इट इज़ ओनली अलाउड फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और द फर्स्ट 3 months। देन सेकेंड इज़ कि इसमें यू कैन नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, आप फीटस का सेक्स नहीं डिटरमाइन कर सकते। आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या फीटस को कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जैसे हमने चैप्टर 5 में स्टडी किया है, कोई डाउन सिंड्रोम, टर्नर क्लाइनफेल्टर, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कोई फीटस है जिसको जेनेटिकली कोई बहुत ह्यूज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम है, दैट कैन बी अबॉर्टेड। बट अगर एक हेल्दी फीमेल फीटस है तो एक तो उसका सेक्स डिटरमाइन करना अलाउड नहीं है, एंड फीमेल फीटिसाइड इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ओके, देन एज आई वाज टेलिंग यू कि MTP के रूल्स हर कंट्री में अलग होते हैं। तो एक बहुत ही डिसहार्टनिंग सा केस आया था। एक कंट्री है आयरलैंड, आपने मैप में देखा होगा, जो आपका ब्रिटेन है, UK है, उसके जस्ट साथ में प्रेजेंट है। एंड इन दिस कंट्री देर वॉज अ लेडी, इंडियन लेडी थी, डॉक्टर थी, हु वॉज वर्किंग ओवर देयर, डेंटिस्ट थी, डॉक्टर सविता करके उनका नाम था। एंड इनका केस क्या हुआ था दैट दिस लेडी वॉज प्रेगनेंट, और उसके बाद जो फीटस है उसमें कुछ शायद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स थे या कुछ और प्रॉब्लम थी। सो द फीटस डाइड इन हर वूम। ओके, जैसे कई बार होता है ना, फीटस होता है मदर की बॉडी के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में अबॉर्ट करके वो उस डेड फीटस को निकाल देते हैं। बट आयरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एबॉर्शन के लिए अलाउड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टली दे डोंट अलाउ एबॉर्शन। तो वहाँ पे कोई क्योंकि रूल ही नहीं था, सो नो डॉक्टर टच्ड हर, और उनका एबॉर्शन नहीं हो पाया टाइमली। और डेड फीटस अगर मदर की बॉडी में होता है तो उससे बहुत ज़्यादा मदर की बॉडी में पॉइजन स्प्रेड हो सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट दिस यंग लेडी डाइड एट अ वेरी यंग एज। उसके बाद आयरलैंड ने अपनी जो भी MTP से रिलेटेड रूल्स हैं उनको मॉडिफाई किया। उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा स्पेशल केस है कि फीटस मैलफॉर्म्ड है या फीटस की मदर की बॉडी में डेथ हो चुकी है जिससे कि मदर की जान को भी खतरा है, उस केसेस में हम MTP अलाउ करते हैं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी यंग डेथ होने के बाद द कंट्री रियलाइज इट्स मिस्टेक एंड रेक्टिफाइड इट। सो हर कंट्री के जो MTP के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, दे कीप ऑन वेरिंग। देन वी हैव दिस टॉपिक ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। आप जब NCERT रीड करोगे तो उसमें मेंशन है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उसको STD भी कहते हैं, फुल फॉर्म पता ही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसको हम RTI भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको हम VD भी कह सकते हैं, VD स्टैंड्स फॉर वेनरल डिजीज़। सो एक ही डिजीज़ के, ये जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं इसके 3 नेम्स हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, वेनरल डिजीज़ है। ओके, अब हमारे सिलेबस में बहुत सारी डिजीजेस के नेम लिख के छोड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली वी नो इफ इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सो द पर्सन मस्ट अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स, बिकॉज ये सेक्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होती है। प्रोटेक्शन शुड बी टेकन वाइल परफॉर्मिंग दी सेक्सुअल एक्ट। अगर किसी पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है सो दे मस्ट गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट ट्रीटेड, क्योंकि जितना आप ट्रीटमेंट डिले करोगे उतना ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाएगा, उसको क्योर करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे सिलेबस में RTI में एक तो मैंशनड है गोनोरोया। मैं इसको आपका पूरा फ्लो चार्ट बना के आई विल बी सेंडिंग दिस फ्लो चार्ट। तो एक हमारी डिजीज़ होती है गोनोरोया, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। नाइसीरिया गोनोरोया एक बैक्टीरिया है, उसके थ्रू ये होता है। एंड दिस डिजीज़ विल अफेक्ट और विल कॉज जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। हार्ट की जो वाल्व्स हैं उसको भी अफेक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है, समटाइम दे में अफेक्ट अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो। देन आपकी बुक में एक टर्म मेंशन है पीआईडी, ये पीआईडी कॉज करता है। फुल फॉर्म भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशनड है, दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक, पेल्विस जो होता है वो एब्डोमेन का लोअर एरिया है, जो हमारे एब्डोमेन जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है, वो जो लोअर एरिया होता है चेस्ट का, दैट इज कॉल्ड पेल्विस। जहाँ पे अगर फीमेल्स है तो यूट्रस और ओवरी होगा, मेल्स है तो टेस्टिस एंड अदर थिंग विल बी प्रेजेंट, सो दैट लोअर पार्ट इज कॉल्ड पेल्विस। वहाँ पे ये स्वेलिंग कॉज कर देता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। तो ये पीआईडी इसका मेन सिम्टम है, दैट इट इज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन द पेल्विक एरिया। देन उसके बाद एक मेंशनड है सिफिलिस, एनसीईआरटी बुक में सिर्फ नाम लिख के छोड़े हुए हैं। तो ये जो आपका सिफिलिस होता है ये भी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नेम है ट्रैपोनीमा पैलिडम। नो नीड टू वरी, आई विल बी सेंडिंग द फुल चार्ट, उसको आप अपनी कॉपी में बना लेना। तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है स्किन को, ठीक है। इससे पूरा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, स्किन के ऊपर बहुत सारे रेड रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, और अगर इसको टाइमली मेडिसिन लेके ठीक ना किया जाए तो ये बॉडी के पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। सो दैट इज़ वाई लॉट ऑफ प्रिकॉशन नीड्स टू बी टेकन। देन एनसीईआरटी बुक में एक मेंशनड है जेनाइटल हर्ब्स, ठीक है। ये एक वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और इसमें जो वायरस इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं HSV, हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। अब ये जो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस है ये जेनाइटल एरियाज को अफेक्ट करेगा, तो वहाँ पे स्वेलिंग कॉज कर सकता है। पेल्विस में जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। सो ऑल दी सिम्टम्स इट विल बी कॉजिंग। अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग डिजीज़ है वो है जेनाइटल वॉर्ड। अभी हमने जो पढ़ा वो था हर्ब्स, ये होता है वॉर्ड्स। जेनाइटल वॉर्ड्स में क्या होता है, एक ऐसे हार्ड स्किन कलर के ऐसे लम्स टाइप फॉर्म हो जाते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली कॉज्ड बाय अ वायरस जिसको हम बोलते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अभी जब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी जीन्स हैं। ये कैसे होता है ये सारा प्रोसेस हम चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे, सो नो नीड टू वरी। तो ये जो हमारे HPV हैं ये कार्सिनोजेनिक है, मीन्स दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर, ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो अगर कोई फीमेल HPV से अफेक्ट हो जाएगी तो उसमें सर्विकल कैंसर हो जाता है। सर्विक्स कौन सा पार्ट होता है फीमेल्स की बॉडी में, यूट्रस का लोअर पार्ट है। सो देयर दिस वायरस विल बी स्टेइंग, और वहाँ पे पूरे सेल्स को ये कैंसरस में चेंज कर देगा, एंड दैट लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस विल डेवलप कैंसर, एंड इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कैंसर है तो ऑब्वियसली फिर कीमोथेरेपी एंड सर्जरी एंड व्हाट नॉट द डॉक्टर्स विल बी डूइंग, सो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। अगर कोई मेल है जिसको जेनिटल वॉर्ड की प्रॉब्लम है और उन्होंने उसको टाइमली ट्रीट नहीं करवाया, देन इन केस व्हाट विल हैपन, मेल्स में ये अलग एरिया को अफेक्ट करता है। देखो वायरस अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है, हमारे हॉर्मोन्स कैसे हैं, हमारी जीन्स कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग वायरस तो सेम है, बट फीमेल्स में वो यूट्रस के लोअर पार्ट को अटैक कर रहा है, मेल्स के केस में वो अटैक करता है हेड और नेक एरिया। सो एनी मेल हु इज़ अफेक्टेड बाय HPV वायरस उनको हेड और नेक कैंसर हो जाएगा, ओके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और 80% में अगर वो उसको टाइमली ट्रीट नहीं करवा रहे हैं तो हो भी जाता है। सो ये एक बहुत ही स्पेशल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसमें कि जो वायरस है वो कार्सिनोजेनिक है, इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ कॉजिंग cancer, which is very very serious disease, so it must be taken on a priority basis। अगर किसी को भी genital areas में itching हो रही है या swelling जैसा लग रहा है या पस है या स्किन पे एबनॉर्मल रैशेज हैं, सो द पर्सन मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। देन वी हैव हेपेटाइटिस बी, ओके। हेपेटाइटिस बी जो आपका होता है नॉर्मल डिजीज़ है, बट ये किसी भी टाइप के बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड एंड अदर थिंग ऑल्सो। सो सीमन के थ्रू भी और विद द हेल्प ऑफ genital fluid also it can be transmitted, and this disease is caused by hepatitis B virus। तो इसको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है, और इसका जो मेन टारगेट होता है वो लिवर है, ये पूरा लिवर डैमेज कर सकता है। हेपा वर्ड का मतलब होता है लिवर, आइटिस का मतलब होता है डेथ, मतलब एक ऐसी डिजीज़ जो आपके लिवर सेल्स की डेथ को कॉज कर सकती है। तो हेपेटाइटिस बी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो चुका है सो इसके प्रॉपर टेस्ट हैं, इसकी वैक्सीन्स हैं, इसकी मेडिसिन हैं, लेकिन अब वो तभी काम करेंगी व्हेन इट हैज़ बीन डिटेक्टेड टाइमली। अगर बहुत ज़्यादा
5 साल के बाद 3 साल के बाद डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हो, तब तक केस बहुत ख़राब हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लिवर है उसका डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो वॉट एवर द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज, द पर्सन, if any person is feeling any of the symptoms, so they must consult a good doctor, they must complete their medicine course. Then उसके बाद हमारी बुक में एक टॉपिक है, that is infertility. अब ये infertility means inability of a couple to produce a child. Okay, अगर कोई childless couple है, they are not having any kids, that condition is called infertility. अब infertility को treat करने के लिए जो आज की डेट में डॉक्टर्स ऑप्शन यूज करते हैं उसको बोलते हैं ART, assisted reproductive technology. Okay, जिसमें IVF भी आता है, ICSI आता है, that we will discuss. तो ये जो ART है इसको हमने फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. इसमें सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसको हम बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज दिस इन विट्रो? इन विट्रो का मतलब ही होता है जो बॉडी के बाहर हो रहा है, ग्लास कंटेनर्स में हो रहा है. तो अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन सम ग्लास कंटेनर्स और पेट्री डिशेज और other thing, then it will be called in vitro fertilization. So what is the procedure of in vitro fertilization? That from the male partner sperms will be taken and from the females the ovum can be extracted. पहले females को कुछ injections दिए जाते हैं which are like FSH injection. तो ये जब injections हम देंगे तो multiple eggs will be formed and एक छोटा सा 5-10 मिनट्स का प्रोसीजर होता है जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल माइनर सा है, कोई आपको स्टिचेस नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे. द डॉक्टर्स विल बी टेकिंग आउट द ओवम एंड दीज ओवम्स एंड स्पर्म विल बी फ्यूज टुगेदर, दे विल बी केप्ट इन द पेट्री डिश. तो वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे जाइगोट पूरा फॉर्म हो जाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी. So that is why we are calling it as in vitro fertilization. And once the zygote has been formed, हम wait करेंगे 3 days के लिए या 5 days के लिए. देखो अगर हम 3 days के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है जाइगोट है वो डिवाइड करेगा, 2 सेल स्टेज बनाएगा, 4 सेल स्टेज बनाएगा, 8, 16 मोरुला, ब्लास्टुला ऐसे चलेगा ना. तो अगर हमारा एम्ब्रियो छोटा है मतलब उसमें 8 सेल्स ही हैं, 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, तो नेचुरली अगर वो एम्ब्रियो बनता 8 ब्लास्टोमियर्स वाला बनता तो वो कहाँ पे बनता है? वो आपका जाइगोट में बनता है. आप चैप्टर 3 का डायग्राम देखो जहाँ पे वो पूरा ब्लास्टुला वाला और वो ABCDF वाला पूरा डायग्राम है. अगर नॉर्मल कंडीशंस में एक एम्ब्रियो बन रहा है जिसके अंदर सिर्फ 8 सेल्स हैं तो वो जाइगोट का जो आपका फेलोपियन ट्यूब वाला हिस्सा है, जाइगोट जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब वाले पोर्शन में प्रेजेंट है. तो अगर छोटा एम्ब्रियो है, सेकेंड डे ही हुआ है अभी फर्टिलाइजेशन के बाद, अभी उस एम्ब्रियो में नंबर ऑफ सेल्स कम है, वी हैव एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, वी कैन सी थ्रू इट विद द हेल्प ऑफ दैट. तो अगर 8 ब्लास्टोमियर्स या उससे कम है देन वी कैन ट्रांसफर दिस एम्ब्रियो इन द फेलोपियन ट्यूब पोर्शन और उसको हम बोलते हैं जिफ्ट. मतलब अगर एम्ब्रियो छोटा है, अभी उसमें सिर्फ 8 सेल्स हैं, तो हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे तो उसको बोलते हैं जिफ्ट. क्योंकि देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के 2 स्टेप्स हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. एक है कि हम पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे, मीन्स की जो फर्टिलाइजेशन है इट विल बी टेकिंग प्लेस आउटसाइड. उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करना है. तो 2 तरीके हो सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के. एक तो ये जिफ्ट हो सकता है कि अगर आपका एम्ब्रियो छोटा है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है, तो हम उसको एक पतली सी कैथेटर ट्यूब होती है और उसमें कोई सर्जरी, कोई स्टिच कुछ नहीं आता, कोई एनेस्थीसिया भी नहीं देना पड़ता डॉक्टर्स को, उसके थ्रू फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अगर एम्ब्रियो साइज़ में लार्ज हो चुका है, मतलब उसमें सेल्स जो हैं वो 32 से ज़्यादा हो गई हैं, वो ब्लास्ट्यूला स्टेज पे पहुंच चुका है. आपको पता ही है कि जो ब्लास्ट्यूला होता है वो यूट्रस में आके इम्प्लांट होने की कोशिश करता है नेचुरली जो होता है. तो अगर डॉक्टर्स ने 5 डेज़ के लिए वेट किया और एम्ब्रियो बड़ा हो चुका है, 5th डे तक वो पहुँच चुका है, तो फिर हम उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं. दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र. तो IVF जब करेंगे तो एम्ब्रियो को हमने किस स्टेज पे ट्रांसफ़र किया, तो उसके अकॉर्डिंग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 टाइप का हो सकता है, जिफ्ट हो सकता है, IUT हो सकता है. तो ये दोनों ही आपके IVF के टाइप हैं. IVF में जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अगर नंबर ऑफ़ सेल्स कम होंगी तो फेलोपियन ट्यूब में कर देंगे, नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा है तो यूट्रस में कर देंगे, लेकिन ये IVF का ही टाइप है. तो आप ये मत सोचो कि ये कोई अलग से मेथड है. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट मेथड विच इज़ कॉल्ड गिफ्ट. अब ये वाला जो मेथड है दिस इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग फीमेल फर्टिलिटी. जैसे मान लो कोई फीमेल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल बट शी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस हेल्दी एग्स. कुछ भी रीज़न हो सकता है कि जेनेटिकली एग्स में मियोसिस अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बार बार हो रहा है कि ओवम हेल्दी फॉर्म नहीं हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फीमेल इज़ इनफर्टाइल, दे आर नॉट एबल टू हैव अ चाइल्ड.
So उस केस में what we can do is कि from some other female we may take the ovum and egg and we may fertilize this ovum or egg with the sperms of the husband of that lady. ओके तो हम क्या करें, फीमेल फर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए किसी और फीमेल का जो एग है, ओवम है, उसको डोनेट कर देते हैं एंड दैट कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो बाय आईवीएफ प्रोसीजर. और उसके बाद जो पूरा जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ दिस फीमेल एंड दे मे हैव अ नॉर्मल चाइल्ड. ओके तो ये जो जिफ्ट मेथड है, दिस इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग फीमेल फर्टिलिटी. देन वी हैव नेक्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड ICSI. एक तो इसकी फुल फॉर्म लर्न करनी है. इसका नेम होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. अब ये वाला जो मेथड है, दिस इज यूज्ड फॉर इन द कंडीशन अगर जो मेल पार्टनर्स हैं उसमें स्पर्म काउंट कम है, मतलब जो स्पर्म्स बनने चाहिए उतने नहीं बन रहे हैं, एंड स्पर्म्स आर आल्सो नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. if this is the problem that male is not able to produce a required amount of sperm quality, sperm number is less, तो उस केस में डॉक्टर्स जो हैं वो ICSI यूज़ करते हैं. एंड इट्स अ वेरी एडवांस टेक्निक. देखो मेडिकल साइंसेस इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि जो हम ओवम है उसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ अ वेरी फाइन, जो आपका हेयर होता है ना उससे भी छोटा उसका नीडल का साइज होता है, उसके थ्रू हम एक सिंगल स्पर्म को ओवम में पेनिट्रेट कर देते हैं. मतलब अगर मेल पार्टनर्स में स्पर्म कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें भी एटलीस्ट हमें 150 स्पर्म्स अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं. उसमें से बेस्ट क्वालिटी स्पर्म हमने सिलेक्ट कर लिया और उस सिंगल स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया. एक सिंगल स्पर्म ही तो रिक्वायर्ड है फर्टिलाइजेशन के लिए. सो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और फिर हम वैसे ही जैसा हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम करते हैं, वी कैन डू दैट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. अगर इसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे एम्ब्रियो को. अगर नंबर ऑफ सेल्स एम्ब्रियो में ज़्यादा हो जाएंगे तो वी विल बी ट्रांसफरिंग इट इन द यूट्रस पोर्शन. सो दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द प्रॉब्लम लाइज विद द मेल पार्टनर दैट द स्पर्म काउंट इज लेस. उसके बाद लास्ट जो टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ये टेक्निक यूजुअली तब यूज़ की जाती है जब फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती हैं. मे बी कि जो फिलिपिन ट्यूब की सर्विक्स है उसका साइज़ बहुत स्मॉल है, बिकॉज ऑफ दैट द स्पर्म्स आर नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, और सम ब्लॉकेजेस है. सो उस केस में व्हाट द डॉक्टर्स यूजुअली डू इज़ दैट दे टेक द स्पर्म सैंपल ऑफ द हस्बैंड और उसको विद द हेल्प ऑफ अ वेरी फाइन ट्यूब, जिसको कि हम कैथेटर बोलते हैं, उसके थ्रू वो डायरेक्ट यूट्रस में उसको इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म सैंपल को. एंड दिस विल मेक श्योर, इसमें सब नेचुरल हो रहा है, इसमें नो IVF इज बीइंग डन, इसमें वी आर सिंपली इंजेक्टिंग द स्पर्म सैंपल इनटू द यूट्रस. सो नेचुरल फर्टिलाइजेशन होगा. एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन अ लेडी हैज़ टू गो फॉर AI, सो दे विल बी फर्स्ट गिविंग FSH हार्मोन इंजेक्शन ताकि मल्टीपल एग्स बन जाए. अल्ट्रासाउंड वगैरह करके डॉक्टर्स रेगुलरली चेक करते हैं. जब एग्स बर्स्ट होने वाले होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होने वाला होता है, at that time they will be taking the sample of the husband and with the help of catheter tube they will be placing this sample in the uterus of the female. तो natural body के अंदर fertilization होगा. यहाँ पे in vitro fertilization नहीं हो रहा, यहाँ पे in vivo fertilization हो रहा है. इन विवो का मतलब है विच इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी. सो ये यूजुअली मेथड तब यूज़ किया जाता है जब फीमेल्स का जो यूट्रस का लोअर पार्ट है उसमें कुछ ब्लॉकेज है. बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे फिब्रॉइड्स होता है, आप हायर लेवल पे यू विल बी गेटिंग इट. वहाँ पे कुछ ऐसा मास ऑफ लंप सेल्स बन गया है जो कि यूट्रस की लाइनिंग को, माउथ को ब्लॉक कर रहा है. सो उस केस में द डॉक्टर्स में यूज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ AI. तो हमने ART टेक्निक में कितने मेथड्स पढ़े हैं? 4 मेथड्स पढ़े हैं. अगर आपको 3 मार्कर क्वेश्चन आता है तो 4 में से राइट एनी 3. आपके सिलेबस में 4 मेथड्स हैं. ठीक है, मैं दोबारा रिकैपिचुलेट करा देती हूँ. फर्स्ट है IVF के साथ ही एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है विच कैन बी जिफ्ट और इट कैन बी IUT. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारा गिफ्ट. ये तब हम यूज़ करते हैं जब फीमेल इनफर्टाइल है, लेडीज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग और ओवम. देन वी हैव नेक्स्ट मेथड ICSI. ये हम तब यूज़ करेंगे व्हेन द मेल पार्टनर इज एबल टू प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ स्पर्म. एंड लास्ट वाला जो हमारा मेथड है AI, ये मोस्टली तब यूज़ होता है व्हेन द यूट्रस ओपनिंग ऑफ द फीमेल इज ब्लॉक्ड ड्यू टू एनी हेल्थ कंडीशन. फिब्रॉइड हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, सब थोड़ा हाई लेवल की डिजीज़ है. डिजीज़ हो जाती हैं तो ओपनिंग यूट्रस की ब्लॉक हो जाती है. उस केस में देन डॉक्टर्स कैन गो फॉर AI टेक्निक. सो ART आपके सिलेबस में 4 टेक्निक्स मैंशनड है. So do read them, and if you have any doubt we will discuss it in the next class. Thank you students.